जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। This is your last lecture of sports physical therapy. ओके सर। So, in the last lecture, we have learned about the glenohumeral joint. ऐसे ही है. We have learned about the fracture of the clavicle, the shaft of the clavicle that has been fractured. We have talked about the distal clavicular fracture, the distal end, which is going to be fractured. Both of these are different. And we have learned about acromioclavicular joint injuries. Then we have learned about the shoulder rehabilitation, that which activities we are going to, and what are the goals during the acute stage of rehabilitation, during the functional stage, and during return to sports stage. ठीक है, ऐसे ही है. हम लोगों ने तीनों फेजेस में गोल्स पढ़े थे कि क्या हमारा गोल होना चाहिए. ठीक है, प्रोटोकॉल्स अच्छा. पढ़े थे। ओके, सो आपका ये लेक्चर स्किप हो गया था रिस्ट जॉइंट का. ठीक है, ये जिस तरह हम लोगों ने रिस्ट जॉइंट को पढ़ा था, ठीक है, इसका एक प्रीवियस लेक्चर है. ठीक है, वो पढ़ना जरूरी है. तो ये आपका जो है ना लेक्चर रह गया था. दिस इज द लास्ट लेक्चर. I'm going to share screen with you people. Let's start. Okay. So, as you all know that the wrist and hand, they are frequently injured during sports activities or among athletes. Usually among those athletes which have the work to do with the wrist and the fingers. ठीक है. वो कहते हैं कि among the wrist joint, the fracture of the distal end of the radius, it is the most common fracture. And among the carpal bones, or you can yes, among the carpal bones, you can say that the scaphoid is the one. Scaphoid is the one bone that is going to be more fractured as compared to other carpal bones. As you all know that scaphoid is the bone of a proximal row of carpals, ठीक है, present on the radial side just below the thumb. ठीक है, your metacarpal, first metacarpal of the thumb is sitting above the trapezium, and the trapezium is sitting beneath. Trapezium is sitting at the scaphoid. So scaphoid is present on the thumb side, or you can say that scaphoid is present on the radial side. ठीक हो गया. Now both men, adults as well as the children, both have the tendency, or both have the chances to have a wrist pain or a finger pain or a finger injuries or hand injuries. ठीक है, इन दोनों एज ग्रुप्स में कॉमन होती है. ठीक है, ये इंजरी. Now the injury to the hand or injury to the fingers can occur as a result of two mechanisms. The one is the acute traumatic injury. ठीक है, if there is a trauma, if there is a fall. ठीक है, and the second mechanism is it can also occur as a result of repetitive injuries. ठीक है, repetitive usage, repetitive micro trauma, which can lead to either a fracture of these bones or either
you can say that नेक्रोसिस ऑफ दीज बोन्स, ठीक है, एज वेल। जैसे कि हमने शायद वेट लिफ्टर्स में पढ़ा था कि जो कैपिटेट है, ऐसे ही है ना, वेट लिफ्टर्स में कैपिटेट जो होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता, उसका जो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है अमंग वेट लिफ्टर्स ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ द हैवी वेट, ठीक है। एक्सेसिव एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन की वजह से, कॉन्टिनेंट प्रेशर पड़ने की वजह से जो कैपिटेट होती है उस पर नेक्रोसिस हो जाती है अमंग वेट लिफ्टर्स, ठीक है। So that is actually due to the repetitive usage, ठीक है। Repetitive usage can also lead to tendinitis, ठीक है, और ligamentous pain as well, ठीक है। Now, if we talk about management, they have said that management is very much important, significantly plays an important role among wrist and finger injuries, because if we are unable to provide proper treatment, or we are unable to have proper diagnosis at the initial stages of the injury, then it can lead to a functional disability, or it can lead to a disability that can not only affect the athlete's ability to work, to participate in a competition, but also he or she may have a complaint of pain during the activities of daily living. So that's why management is very much important. It plays a significant role in this management, ठीक है, in the management of these injuries, ठीक हो गया। Now, mostly the wrist injuries occur as a result of fall and on outstretched hand, and it usually results in fracture of the distal radius, ठीक है, जिसको हम लोग डिनर फ्रॉग डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, कि if there is a radius, distal end of the radius is being fractured, then it can have a deformity of dinner fork like deformity can produce, ठीक है। और either of the scaphoid get a fracture if you fall on outstretched hand, ठीक है, the carpal bone, ठीक है, or it may be an injury to the intercarpal ligaments. Now, what are the intercarpal ligaments? These ligaments, they are present among the carpal bones and help the carpal bones to align with each other and to be in a normal anatomical position. Okay, whenever there is an injury to the intercarpal ligaments, or there is a rupture to the intercarpal ligaments, you will see either the carpal bones, they become dislocated, or these carpal bones can cause pain due to their abnormal gliding motions at the wrist joint. Okay, so this is important. These ligaments are important, and they are an important point in making your diagnosis. ठीक है, इनको जरूर कंसिडर करना है। Now, the most common thing is you have to know about the exact mechanism of injury, which mechanism is going to cause the wrist pain. Okay, so that mechanism will help you to understand the underlying pathology, or that mechanism will allow you to have a proper diagnosis, okay, on which your management is based, on which your management is going to be based. ठीक हो गया। So you all know that if उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि जी हुक ऑफ हेमेट, आप सबको पता है, it is a carpal bone in the distal row, it can get fractured, the hamate get fracture of its hook, ठीक है, due to the swinging of the golf club, ठीक है, due to swinging of the bat, due to swinging of any racket activity या any sports activity, ठीक है, जिसमें आपने ग्रिप की हुई है किसी चीज को और आपने उसको स्विंग करना है, ठीक है, तो उनमें ये कॉमन होती है कि जी जो हेमेट है उसका हुक जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाए, ठीक है।
So these mechanisms are important in understanding the pathology of the underlying condition. ठीक हो गया? Now, if there are rotational stresses to the radioulnar joint or to the wrist joint, it can result in injuries to the ligaments as well. Okay, so there is an important cartilaginous complex or ligamentous complex known as triangular fibrocartilaginous complex. Okay, which can be injured as a result of rotational injuries or stresses to the wrist joint. ठीक है, excessive rotational stress so means if the patient is having an ulnar deviation along with wrist extension, and then there is a rotation, ठीक है, of the wrist joint, then it can cause injury to the ligamentous complex as well. ठीक हो गया? Now you are going to see the normal anatomy. ठीक है? If you can see that this is the radius, distal end of the radius. This is the ulna. ठीक है? So this is the this proximal row is this is the proximal row of the carpus, that is scaphoid, lineate and tricutrium, ठीक है, and above them are the distal row, ठीक है, जिसमें आपके पास स्केफॉइड के पास आ जाती है ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड, और फिर लिनेट के आगे आ जाती है कैपिटेट, और ट्राइक्यूट्रियम भी आ जाती है हेमेट, ठीक है। सो यहाँ जो प्रॉक्सिमल रो है इसमें आपके पास स्केफॉइड है, लिनेट है, ट्राइक्यूट्रियम है और पिसिफॉर्म बोन है। पिसिफॉर्म बोन का आप सबको पता है कि आपके पास बहुत स्मॉल सी बोन होती है, ठीक है, और यूजुअली वो टेंडन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो देयर आर लिगामेंट्स, the ulno-lunate ligament, a ligament that is going to arise from the ulnar side, from the ulnar bone towards the lunate, ठीक है। There are meniscus which are present between the which are present distally to the ulna, ठीक है। There are ulnotricutrial ligament, a ligament that is going to rise from the ulna towards the tricutrium, ठीक है, and then there is a triangular ligament, ठीक है, which give arises to these ligaments, the ulnotricutrial and ulnolunate ligaments, ठीक है। ये arise हो रहे हैं आपके triangular ligament से, जो कि आपके अल्ना से रेडियस तक जा रहा है, ठीक है, और रेडियस और अल्ना को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। So, what are the causes of acute wrist pain? ठीक है, on the dorsal side, there are many causes for the dorsal wrist pain. ठीक है, it can be a scaphoid fracture, it can be a lunate fracture, it can be a distal radial fracture, or it can be dislocation of any of the carpal bones. ठीक है, and it can be a scaphoid infection syndrome as well. ठीक है, स्केफोलिनेट लिगामेंट का टीयर हो सकता है, ठीक है, द लिगामेंट बिटवीन द स्केफॉइड एंड द ल्यूनेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है स्केफोलिनेट लिगामेंट। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि व्हाई स्केफोलिनेट लिगामेंट इज इंपॉर्टेंट। की बॉक्स डिजीज, एज यू ऑल नो दैट ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ कैपिटेट, ठीक है, दैट इज की बॉक्स डिजीज। यूनिट्राइक्यूट्रियल लिगामेंट, ठीक है, ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रियम के दरमियान लिगामेंट है। डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट की इंजरी है और कार्पोमेटाकार्पल डिसलोकेशन आ जाती है, that can be the cause of the wrist pain, ठीक है। So that is the box disease, a visual necrosis of capillary. Sorry, it is not. This is not the extent of a box disease. Actually, this is showing the scaphoid and the lunate. The lunate is getting injured due to the decreased in blood supply. ठीक है. This is also an avascular necrosis. ठीक है, but it is occurring due to the injury. ठीक है, not due to the repetitive usage. ठीक है.
तो ल्यूनेट की क्या है? दिस इज degeneration of the lunate bone as a whole. If you if you move towards forward, the causes of the volar side wrist pain are there is instability of any of the carpal bones, or if the hamate opophamate is fractured. So we use different tests to determine, or we use different physical examination tests to determine the and to have a diagnosis or to determine the underlying pathology. We are going to study these tests one by one. So the first one is the Watson test for scaphoid injury. Okay. So how you are going to perform this test? Okay, you just have to palpate the scaphoid, ठीक है, just beneath the thumb, ठीक है. यहाँ पर आपने डिस्टल रेडियस को पल्पेट किया, ठीक है, और रेडियस के बाद आपने, ठीक है, फ्रंट साइड के ऊपर आपको पल्पेशन होगी, ठीक है. द फर्स्ट वन दैट इज द scaphoid bone, ठीक है. You have to pinch, you have to put pressure on the scaphoid bone as a whole, ठीक है, and the patient's hand is in ulnar deviation, ठीक है. Then as a physical therapist, you have to move the hand from ulnar deviation towards the radial deviation, ठीक है. आप सारे ये करके देखें बेटा. अल्नर डेविएशन, ठीक है, अल्नर डेविएशन है, ठीक है. अल्नर डेविएशन के बाद आपने स्केफॉइड को पल्पेट करना है लाइक दिस, ठीक है. दिस इज द स्केफॉइड, ठीक है. एक्सटेंशन करके. बच्चों सुन रहे हो? यस यस सर। सर सुन रहे यस सर सुन रहे हैं। ये करके भी देखें. स्केफॉइड बोन है, स्केफॉइड बोन को आपने पल्पेट करना है, ठीक है. अब डिस्टल रेडियस को पल्पेट करो. डिस्टल रेडियस को पल्पेट करने के बाद थोड़ा सा फ्रंट के ऊपर आके आप लोगों ने एक्सटेंशन करके जो आपको सबसे पहले हार्ड चीज मिलेगी दैट इज द स्केफॉइड, ठीक है. मिल गई सबको? यस सर। ठीक है. सो Yes, sir. keep the wrist in ulnar deviation. Now when you move the wrist in radial deviation, you will see that it is going to put pressure on your thumb. That scaphoid is going to put pressure on your thumb. जैसे जैसे आप radial deviation में जाओगे तो आपको फील होगा कि scaphoid जो है वो आपके थंब के ऊपर प्रेशर पुट कर रही है. ऐसे ही है? Yes, sir. करके भी देखे कि नहीं बच्चों? सर किया है किया है सर कर रहे हैं। फील हो रही है कि नहीं हो रही? सर ये थिनार मसल्स के नीचे है उससे पीछे सर क्या कह सर रहे हो रही है हो? फील। सर हो रही है। सर ये मसल्स के नीचे है या उससे पहले आता है स्कैफोइड? नहीं, मसल्स के नीचे तो नहीं, मतलब समझ नहीं आया. सर ये थंब पे मसल है ना, एक थिनार मसल्स. नहीं, रिस्ट के बिल्कुल आपने ये रेडियल साइड के ऊपर जाना है. यहाँ पर आपको कोई मसल नहीं मिलेगा, कोई टेंडन नहीं मिलेगा. टेंडन यूजुअली सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. आपको यहाँ पर कोई टेंडन नहीं मिलेगा इस टाइम, डिस्टल ठीक है. रेडियस के बिल्कुल नीचे है। मिल गया, ठीक है. थंब के बिल्कुल नीचे, ठीक है. ये जो थंब का प्लेन है ना बेटा, थंब का प्लेन, इसके बिल्कुल नीचे आपको जो सबसे बोन प्रोमिनेंट बल्कि मिलती है, ठीक है, दैट इज द स्केफॉइड, ठीक है. अल्नर डेविएशन से आपने इसको लेकर जाना है रेडियल डेविएशन की तरफ. तो जो स्केफॉइड है इट विल टिल्ट इन द वोलर डायरेक्शन. Now whenever you are going to perform this Watson test, ठीक है, this tilting of the scaphoid, ठीक है, it will be in the dorsal direction, ठीक है, or there will be a pain, ठीक है. If there is a dorsal directed tilt or if there is a pain, ठीक है, during performance of this test, ठीक है, then it means that the Watson test is positive for scapholunate instability, ठीक है. The instability present between the scaphoid and the lunate, the first two bones from the radial side, scaphoid and lunate, proximal row की bones हैं, ठीक है. समझ आ गई बच्चों? यस सर आ जी गई है।
Now, the second one is how you are going to test the triangular fibrocartilaginous complex tear. ठीक है, it is simply the mechanism you have to repeat the mechanism, ठीक है, of the injury. जैसे मैंने पहले बात की थी कि triangular fibrocartilaginous complex का जो tear है वो होता ही किस वजह से है, जब आपकी जो wrist है वो अल्नर डेविएटेड होती है और रोटेट हो रही है और साथ में आपकी जो रिस्ट है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, ठीक है। तो सिंपली आपने इस ही मैकेनिज्म को दोबारा से रिपीट करना है। यू हैव टू मूव द रिस्ट ऑफ द पेशेंट इन एक्सटेंशन, ठीक है, एंड यू हैव टू कीप इट इन रेडियल डेविएशन एंड देन यू विल अप्लाई द रोटेशनल फोर्सेस एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। The patient will feel pain or there will be a clicking sensation, ठीक है। It means that this is a positive test for TFCC-TL, ठीक है। Now, pegboard dexterity test. This is a pegboard, ठीक है, and there are nails, ठीक है, the nails, ठीक है, which are of different diameters, ठीक है, and the patient is going to pick each diameter nail and put it in its hole, ठीक है. This is actually to determine the motor control, ठीक है, the coordination, ठीक है, the coordination between these two fingers, the thumb and the index finger, ठीक है. ये जो ऑपोजिशन है इसको जज किया जाता है, मोटर कंट्रोल को जज किया जाता है कि किस तरीके से ये मूवमेंट परफॉर्म की जा रही है, ठीक है. जो पेशेंट है वो डिफरेंट डायमीटर्स के नेल्स को उठा के इंसर्ट करेगा इनटू देयर होल्स. दिस इज पेगबोर्ड डेक्सटेरिटी टेस्ट, ठीक है. ऑब्वियसली जितने कम डायमीटर का होगा उसको उतना ही मुश्किल हो जाएगा पिक करके उसको इंसर्ट करना, ठीक है. नाउ उसने एनाटॉमिकल पोजीशन की बात की है रिस्ट में, ठीक है. वो कहते हैं कि द प्रॉक्सिमल पोल ऑफ द प्रॉक्सिमल कार्पल्स, ठीक है, जो प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की, इनका जो प्रॉक्सिमल पोल होता है, ठीक है, समझ आ गई बात की. कार्पल रोज प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की, इनका प्रॉक्सिमल पोल जो है, डिस्टल पोल नहीं, ठीक है, प्रॉक्सिमल पोल, ठीक हो गया. आपने वहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और आपने इनके डिस्टल रो के ऊपर, जो डिस्टल रो है कार्पल्स के, उनके भी प्रॉक्सिमल पोल्स के ऊपर क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है. दिस इज लाइक दिस. ये एक प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की और एक ये प्रॉक्सिमल रो है. आपने प्रॉक्सिमल रो की जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स के जो प्रॉक्सिमल पोल है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स है उनके भी प्रॉक्सिमल पोल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है. इट विल बी सीन एज अ सी शेप, ठीक है. और वो कहते हैं कि अगर ये लाइन सी शेप्ड फील ना हो, ठीक है, तो इट मींस दैट देयर इज एन एब्नॉर्मल देयर इज अ मेजर एब्नॉर्मलिटी दैट इज प्रेजेंट एंड दैट एट द रिस्ट जॉइंट, ठीक है. either the carpal is dislocated, ठीक है, or either there is the abnormal tilting of a carpal, ठीक है. Like this, ठीक है. The proximal row of carpals and the proximal pole, ठीक है, and this is the distal row of carpals and this is the proximal pole of the distal row of carpals, ठीक है. They are both are seen as a capital C and a small letter c, ठीक है. And if there is any bump in these two lines, it means that there is an abnormality that is going to be present here, ठीक है. Now, if we see that among the proximal row of carpals, ठीक है, the lunate directly fits on the distal radius, ठीक है, while the capitate, that is the bone of the distal row of carpals, it fits directly onto the lunate, ठीक है. So there is a symmetry, ठीक है, there is an alignment. Distal radius के against क्या है आपके पास, lunate है, lunate के आगे आपके पास क्या है, capitate है. अब वो कहते हैं ये जो capitate है इसके सामने आपके पास थर्ड metacarpal होती है. ये फोर्थ चीजों की अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है. एंड इफ देयर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, तो फिर क्या होगा कि आपको इसका मतलब ये है कि आपको या तो डिस्टल रेडियस को कोई इश्यू है, या कैपिटेट को, या हेमेट को, ठीक है.
और इसको चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करवा सकते हो, क्लंच्ड फिस्ट के साथ, ठीक है, एक पोस्टर इंटीरियर व्यू लेते हो क्लंच्ड फिस्ट के साथ, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है द अलाइनमेंट और द सिमेट्री ऑफ दीज 4 बोन्स। ठीक हो गया, लाइक दिस, ठीक है। लेटरल व्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्टल लेटिस के आगे आपके पास ल्यूनेट है, ल्यूनेट के आगे आपके पास क्या है, ल्यूनेट के आगे आपके पास क्या है, कैपिटेट है। अब ये देखो, ये ल्यूनेट की शक्ल देखो, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ ल्यूनर मून शक्ल की होती है, ठीक है, ल्यूनेट, ठीक है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि दिस इज ल्यूनेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूनर, से इसका नाम दिया गया ल्यूनेट का। सही हो गया। अब कहते हैं कि स्केफोल्यूनेट लिगामेंट, स्केफोल्यूनेट इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप एक्सरेस करवा लें, ठीक है, और स्केफॉइड और ल्यूनेट का आपने डिस्टेंस मेजर करना है। अगर तो वो कहता है कि 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस, बल्कि 1 सेंटीमीटर भी काफी होता है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो इट मींस दैट देयर इज अ इंस्टेबिलिटी, ठीक है, आपने एक्सरेस के ऊपर जज करना है। लेकिन वो कहते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एज कंपेयर्ड टू सीटी स्कैन, ठीक है। और वो कहते हैं कि इसके अलावा आप लोग अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हो टू डिटरमाइन द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज related to the wrist joint as well. ठीक हो गया। Now, if there is a fracture of the distal radius, ठीक है, तो फिर क्या होगा? कहते हैं if there is a fracture of the distal radius, ठीक है, you have to go for internal fixation, open reduction and internal fixation, and then mobilize it into a long arm spica cast, ठीक है। लॉन्ग आर्म स्पीकर कास्ट क्या कहता है कि यू हैव टू अप्लाई इट फ्रॉम द फोर आर्म, ठीक है, एंड टिल द रिस्ट, ठीक है, हाफ ऑफ द फोर आर्म से लेके टिल द रिस्ट यू हैव टू अप्लाई इट, सॉरी दिस इज शॉर्ट आर्म स्पीकर कास्ट, हाफ ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, एंड टिल द रिस्ट, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट आर्म स्पीकर कास्ट, इसमें आपने इमोबिलाइज कर देना फॉर 4 weeks, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि what will be the protocol to determine the healing. The protocol is you have to revise X-rays in after every 2 weeks, ठीक है, in order that if there is a normal healing that is going place, ठीक है। Now the fracture of the scaphoid, as you all know that the mechanism we have discussed it earlier. The scaphoid can be fractured as a result of fall on an outstretched hand. If the pressure puts on to the scaphoid, there will be a fracture of the scaphoid, and if it is transmitted on to the radius, there will be the fracture of the distal radius, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब भी स्केफॉइड का फ्रैक्चर होगा तो आपको एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ठीक है, सबको बनाना आता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, किसी को ऐसा हो कोई बच्चे जिसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का ना पता हो, ठीक है, you have to have a anatomical snuff box, and when you will observe or when you will palpate this anatomical snuff box, you will have a tenderness, ठीक है, patient will go for patient will face a tenderness, ठीक है, in this anatomical snuff box, ठीक है। कहते हैं इस anatomical snuff box में tenderness भी हो सकती है, इसमें आपको swelling भी मिल सकती है, पेशेंट को पेन भी होगी, ठीक है। लेकिन वो कहता है यूजुअली अगर तो बहुत स्लाइट सी स्वेलिंग है तो इट मींस दैट इट इज नॉर्मल, ठीक है। फिर आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इसको यही समझो कि जी ये इंजरी हुई है, क्योंकि वो कहता है कि जो स्लाइट सी एलिवेशन स्लाइट सी स्वेलिंग है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, नियर टू नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर कोई टेस्ट अप्लाई करना है तो टेस्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या होता है कि आपने स्केफॉइड के जो थंब है, ठीक है, उससे आपने एक्सियल कंप्रेशन पुट करना है डायरेक्टली ऑनटू द स्केफॉइड, किससे, थंब से डायरेक्टली एक्सियल कंप्रेशन पुट करना है ऑनटू द स्केफॉइड, ठीक है। देयर इज अ पेन, पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ इट, ठीक हो गया।
उसके बाद वो कहता है कि हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि जी for MRI and bone scan, ठीक है, it will need almost 24 hours, ठीक है, to have these investigations get out, ठीक है। मतलब 24 घंटों के बाद अगर आप ये MRI और bone scan करवाओगे तो then it will be important, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि if these modalities are not available, ठीक है, you must immobilize the wrist for 10 to 12 days, ठीक है, and then repeat a radiographic, then have a radiograph, ठीक है, either it can be an X-ray, either it can be MRI, or either it can be a bone scan, ठीक है। जब आप ये इन्वेस्टिगेशन कर लेते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही स्केफॉइड का फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब जो अनस्टेबल स्केफॉइड फ्रैक्चर्स होते हैं उनके लिए हमें ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ परक्यूटेनियस वायर्स, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जो स्टेबल स्केफॉइड के फ्रैक्चर्स होते हैं उनको हम लोग सिंपली इमोबिलाइज कर देते हैं फॉर 8 वीक्स के लिए, ठीक है। और उसकी इमोबिलाइजेशन करते हैं हम लोग लॉन्ग स्पीकर कास्ट के अंदर। ये जो लॉन्ग स्पीकर कास्ट है, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द proximal end of the forearm bone, ठीक है, and end till the interphalangeal joint of the thumb, ठीक है। You have to immobilize it, ठीक है। This is the long arm cast, ठीक है। How we are going to have an open reduction and internal fixation of the scaphoid bone, ठीक है। ये इसमें स्केफॉइड को एज अ होल, ठीक है, क्या कर दिया है, इंट्रामेडुलरी नेल डालकर स्केफॉइड को एज अ होल यूनाइट कर दिए, ठीक है। देयर वाज अ फ्रैक्चर बिटवीन द टू बोन्स ऑफ द बिटवीन द स्केफॉइड बोन, ठीक हो गया। नाउ there are complications associated after the fracture of the scaphoid, ठीक है। The most common are the stiffness and the muscular disuse atrophy of the muscles, ठीक हो गया। इसके अलावा कहता है कि नॉन यूनियन भी हो सकता है और नेक्रोसिस भी हो सकती है फ्रैक्चर के बाद स्केफॉइड की। Now the next one is fracture of the hook of femur, ठीक है। वो कहते हैं whenever athlete or some other individual is going to swing a bat or a racket, ठीक है, or a club, ठीक है, तो there are chances that he or she may suffer a fracture of the hook of femur, ठीक है। How it will happen, ठीक है। एज यू ऑल नो डेट के अगर हम राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं तो हम लोग इस राइट हैंड को बैट को पकड़ने के लिए या रैकेट को पकड़ने के लिए ये हाथ हमारा सबसे नीचे होता है, ठीक है, जबकि ऑपोजिट जो हाथ होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, हम राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो हमारा जो डोमिनेंट हैंड होता है वो नीचे होता है एज कंपेयर टू द नॉन डोमिनेंट हैंड। अगर लेफ्ट साइडेड होंगे तो मेरा ये डोमिनेंट हैंड नीचे होगा और नॉन डोमिनेंट हैंड ऊपर होगा। सो कहता है कि जब भी ऐसे इंडिविजुअल जो के रैकेट को घुमाते हैं या बैट को घुमाते हैं, ठीक है, या क्लब को घुमाते हैं, तो अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज जो है वो आपके किसी हार्डर ऑब्जेक्ट के साथ या फिर किसी या फिर आपकी ये जो फ्लोर है इसके साथ टकराती है, तो जो क्लब का या बैट का या रैकेट का जो टॉप हैंडल होता है, ठीक है, इट विल स्ट्रक डायरेक्टली ऑन टू द नॉन डोमिनेंट रिस्ट, ठीक है। और कहते हैं जब वो स्ट्रक करता है, ठीक है, तो इट कैन कॉज द फ्रैक्चर ऑफ द हुक ऑफ हेमेट, ठीक हो गया, समझ आ गई। इसका मतलब क्या है कि राइट साइडेड गोल्फर्स में जो लेफ्ट साइड की हुक ऑफ हेमेट है उसके ज्यादा चांसेस हैं फ्रैक्चर होने के, ठीक हो गया। इसमें वो कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कंप्रेशन ऑफ द अल्नर नर्व एज वेल, ठीक है, और इसकी वजह से आपको पेन भी आ सकती है, उसकी वजह से आपको सेंसरी सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक हो गया।
दिस इज द मैकेनिज्म how this right-sided dominant individual, ठीक है, is having the fracture, ठीक है, on the non-dominant side, ठीक है, by the top of the handle, ठीक हो गया। कहते how you are going to examine it. Whenever you are going to examine it, you will see the pain is present on the ulnar side, ठीक है, there will be tenderness or there will be swelling on the ulnar side. Skephoid में radial side के ऊपर swelling, radial side के ऊपर tenderness, radial side के ऊपर pain है, ulnar side में ulnar side के ऊपर pain है, ulnar deviated है और tenderness मिलेगी आपको swelling के साथ साथ, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि एमआरआई और सीटी स्कैन बोथ आर यूजफुल, ठीक है, हम इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों मुझे इस तस्वीर में दिखाइए कहां पर हुक ऑफ हेमेट फ्रैक्चर हो रहा है। जी क्लास सर हमारी लेफ्ट साइड पे जो लास्ट ये वाली बोन नो नहीं सर लेफ्ट 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 साइड पे लास्ट वाली में। ये वाली, मतलब इसके साथ वाली ये वाली, हाँ ये वाह जी वाह, क्या बात है, पक्की बात है। सर मुझे तो वीडियो नजर नहीं आ रही। ठीक है, एक्चुअली अल्नर साइड के ऊपर मोस्ट, ठीक है, अल्नर साइड के ऊपर, ठीक है, सो दैट इज द बोन। नो सर इसके साथ वाली में नहीं इसके साथ वाली ये वाली ये है ठीक है, दिस इज, ये जो हेमेट होती है ये आपकी सबसे इधर होती है, जी सर हम यही बोल रहे हैं। So this is the bone which is going to be fractured, ठीक है, hook of hemet, ठीक है, this is the CT scan और ये एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे में अब आप देखो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, सॉरी दिस इज द एमआरआई, ठीक है, दिस इज द ट्रेपेजियम, सही है फ्रैक्चर हुक ऑफ हेमेट का भी आ fracture, रहा है इसमें भी नजर आएगा, अभी मैं बताता हूँ, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, ये हेमेट है और ये देखो ये इसकी हुक का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है बच्चों? कौन सा सर हेमेट का फ्रैक्चर होगा? हुक ऑफ हेमेट का फ्रैक्चर होगा बेटा। ओके सर ठीक है, नजर आ रहा है ये एमआरआई के अंदर, दिस इज द यस सर एमआरआई के पीआर ओके सर ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी फ्रैक्चर, ठीक है। नाउ वो कहते हैं कि यूजुअली जो हुक ऑफ हेमेट का फ्रैक्चर है इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड लेट, ठीक है, वो कहते हैं कि इफ देयर इज इफ द डायग्नोसिस इज बीइंग मेड लेट, ठीक है, या डायग्नोसिस जो है वो लेट हो गई है या पेशेंट ही आपके पास लेट आया है, ठीक है, आफ्टर 4 to 5 वीक्स, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, या फिर अगर वो कहते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो थी वो आपकी फेल हो गई है, आपने इमोबिलाइजेशन करके रख दिया था फौरन ही जब आपका हुक ऑफ हेमेट फ्रैक्चर हुआ तो आपने उसको इमोबिलाइज कर दिया, इफ इट इज गोइंग टू बी फेल्ड, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है उसको ओपन करके, ठीक है, उस फ्रैक्चर्ड हुक को क्या कर देना है, एक रिमूव कर देना है, ठीक है, सही है, तो इट विल प्रोड्यूस नो हार्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट, ठीक है, द ल्यूनेट इज द प्रॉक्सिमल कार्पल बोन, ठीक है, और वो कहता है कि ल्यूनेट की एंटीरियर डिसलोकेशन इज पॉसिबल। आप सबको पता है कि ल्यूनेट डायरेक्टली फिट्स इनटू द कनकैविटी ऑफ द डिस्टल रेडियस एंड द कैपिटेट डायरेक्टली फिट्स ऑनटू द डिस्टल कनकैविटी ऑफ द ल्यूनेट, ठीक है। अब वो कहते हैं ल्यूनेट को मैंने क्या पहले कहा है कि ल्यूनेट से ल्यूनेट निकली है, ठीक है,
मून शेड अपीयरेंस है, ठीक है। तो यूजुअली जो इसकी डिसलोकेशन है दैट इज ऑन द वोलर साइड, ठीक है, ऑन द वोलर एस्पेक्ट, ठीक है, सही है। जब भी आपकी वो कहते हैं इंटीरियर डिसलोकेशन होगी, ठीक है, तो यू विल सी अ पेरिन्यूलर डिसलोकेशन, ठीक है। पैरेलल डिसलोकेशन का मतलब ये है कि ये जो इसकी मून शेप्ड अपीयरेंस है, जो इसकी कनकेविटी है जिसमें कैपिटेट फिट हो रही होती है, ठीक है, ये कनकेविटी क्या करती है, वो आर्टिकुलर सरफेस क्या करती है, डिसलोकेट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है इन द वोलर, ऑन द वोलर साइड, ठीक है। वोलर साइड के ऊपर आपको ये फील होती है एंटीरियर इसकी डिसलोकेशन, ठीक है। वो कहते हैं कि यूजुअली जो anterior dislocation है that is going to be occur as a result of extended wrist, ठीक है, against some type of against a resistance, high resistance exercise, ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि if patient have a history of fall on outstretched hand, ठीक है, then there it can be an anterior dislocation of the lunate, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो एक्सरेज होते हैं, ठीक है, वो आपको सिंपली बहुत अच्छा व्यू दे देते हैं ल्यूनेट का, क्योंकि आप जो ल्यूनेट है वो कैपिटेट के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती, पीछे से डिस्टल रेडियस के साथ जरूर आर्टिकुलेट करिए, लेकिन आगे किसके साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही, आपकी कैपिटेट के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही, जिसका आपको फौरन से पता चल जाता है और यू कैन हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस, ठीक हो गया। Now, with anterior dislocation of the lunate, there is an important complication that the median nerve can get damaged, ठीक है। वो कहता है if there is a compression on the median nerve, you will have a sensory symptoms as well as you will have a pain, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहता है कि जी आपके ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और ज्यादा इंजरी, ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है कि आप सिंपली ओपन रिडक्शन करके इंटरनल फिक्सेशन, ओपन रिडक्शन करते हो, ठीक है, वेस्ट की ओपन रिडक्शन, सॉरी ओपन करते हो आप इसको, ठीक है, सर्जरी परफॉर्म करते हो, ओपन करते हो, और फिर आप वहां पर लिगामेंट्स को क्या करते हो, रिपेयर करते हो, ठीक है, सही है, और इसको वापस उसकी जगह पर नेगेटिवली रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, ओपन रिडक्शन करके, ठीक है, इस डिसलोकेशन को। लेकिन इसके साथ जरूरी क्या है कि आपने लिगामेंट्स को रिपेयर करना है, अदरवाइज वो फिर से क्या हो जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा कहते हैं कि अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए तो फिर आपने डिकम्प्रेशन सर्जरीज करनी होती है, आपने मीडियन नर्व के ऊपर से कंप्रेशन हटाना होता है, और जितना जल्दी हो सके आप वो कंप्रेशन हटाओगे, ठीक हो गया। The next is scapholunate dissociation, ठीक है, that is important. The association between the scaphoid and lunate is primarily due to the intercarpal ligament, the scapholunate ligament. Whenever this ligament is going to rupture, there will be an increased in space, increased in dissociation, a difference between these two bones, that is scaphoid and lunate, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि scapholunate dissociation कैसे हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्केफोलिनियर डिसोसिएशन इज पॉसिबल व्हेनेवर देयर इज अ रप्चर ऑफ द लिगामेंट्स, ठीक है, whenever there is a direct impact on the scaphoid or on the lunate, ठीक है, और जिसकी वजह से लिगामेंट्स रप्चर हो जाएं। अगर लिगामेंट्स रप्चर हो जाएंगे then there will be a dissociation between these two bones, ठीक है। वो कहते हैं whenever you are going to examine, you will have an examination, ठीक है, कि there is 1 inch distal, ठीक है, to the lesser tubercle, you will see a you will have a tenderness, ठीक है। Now what is lesser tubercle, ठीक है।
जो आपका स्टाइलाइट प्रोसेस होता है बेटा रेडियस का, ठीक है, जब आप इसको डीपल्पेट करते हो वोलरली, ठीक है, ये तो एक आपका स्टाइलाइट प्रोसेस है, ठीक है। जब वोलरली डिस्टल रेडियस को आप डीपल्पेट करते हो तो यहाँ पर भी आपको एक प्रोमिनेंस मिलती है, आप उसको लिसर्स ट्यूबरकल बोलते हो, ठीक है। इट इज जस्ट इन द मिड ऑफ द रिस्ट, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टेंडन्स होते हैं तो आपको काफी डीपल्पेट करके उसको पल्पेट करना होता है, ठीक है, उसको फील करना होता है। तो ये जो लिसर्स ट्यूबरकल है इसके 1 इंच के फासले के ऊपर आपको टेंडरनेस मिलेगी, और वो जो टेंडरनेस है दैट विल शो स्केफोलियोनेट डिसोसिएशन, ठीक है। स्टाइलाइट प्रोसेस इज ऑन द लेटरल साइड, ठीक है, इट इज जस्ट इन द सेंटर, ठीक है। रेडियस का ही प्रोमिनेंस है, बोनी प्रोमिनेंस है, बहुत छोटा सा, जिसको आप लिसर्स ट्यूबरकल बोलते हो, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, यू आर गोइंग टू मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ अ ओपन रिडक्शन, ठीक है, एंड लिगामेंटस रिपेयर, ठीक है। जस्ट यू हैव टू ओपन द रिस्ट, ठीक है, यू हैव टू रिपेयर द लिगामेंट्स, नेसेसरी लिगामेंट्स, एंड देन यू हैव टू क्लोज इट, ठीक है। तो स्केफोलियोनेट डिसोसिएशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द स्केफोलियोनेट डिसोसिएशन, ठीक है। बेटा ये नजर आ रही है सबको, दिस इज द स्केफॉइड बोन, दिस इज द ल्यूनेट, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी मच इन साइज, दिस इज इंडिकेटिंग द स्केफोलियोनेट डिसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपके पास एक एमआरआई है, एमआरआई में आपके पास दिस इज द स्केफॉइड बोन, दिस इज द डिस्टल रेडियस, दिस इज द स्केफॉइड बोन, ठीक है, दिस इज द ल्यूनेट, ठीक है। if the distance, this distance is indicating just 0.42 centimeters, ठीक है, 0.42, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो या इतना भी हो 0.42 सेंटीमीटर, तो वो भी क्या इंडिकेट करता है कि there is a scapholinate dissociation। ओके बच्चों, सर कोर्स खत्म हो गया हमारा। हाँ जी बेटा, आपका कोर्स खत्म हो गया, ठीक है। सर शादी अब मुबारक। आप हैं, मैंने कहा मुबारकबाद भी दे देना। अच्छा, वो आप लोगों को ज्यादा आता है उदा। हाँ आप सर ने पढ़ाया, आता तो है ही है। अच्छा 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी, 11 जनवरी से ऑनवर्ड, ठीक है, आप लोगों का होगा ओरल टेस्ट, ठीक है। सर कोई 16-17 जनवरी रखें। 11 को ऑलरेडी हमारा है 15% सर का। हमारा जेरिएट्रिक्स का वाइवा है। सर 12 को भी बच्चों का है, सीपीटी का 12 और 13 को सीपीटी का है। 14, सर 15 से रखे सर, 15 से। 15 16 कर दे, 16 कर दे, 16 नहीं 16 सैटरडे बन रही है, 18, ओके सर, 14 ओके ठीक ओके, है, डन डन डन। डन सर। 18 और 19 को, ठीक है। ये ठीक है 2 सर। डेज बेटा आप लोगों का होगा ओरल टेस्ट, ठीक है, सही है। आपको टाइमिंग मैं बता दूंगा, लेकिन ये 18 और 19 डेट आपकी कंफर्म है मंडे की, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। और इन 2 दिनों में हम लोगों आप लोगों ने ओरल टेस्ट प्रिपेयर करना है, और जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी सारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ओरल वो क्या कह रहे हो? लेक्चर सर कौन वो कौन कह से? रहे हैं लेक्चर नंबर बता दें। लोअर लिम के लेक्चर्स थे, सर ने बता दिया था। बेटा ओके। 5 लेक्चर्स हैं, 11 है, मेरे ख्याल से 11, 12, 13, 14 और 15 है शायद। ठीक है सर, ठीक है। सर हिप थाई एंकल और नी था ना, तो 4 नहीं हुए। हाँ सर 4 बन रहे हैं, 4 तो काफी है इतने। नहीं 4 तो कम है बेटा। सर नहीं ना, लोअर नहीं नहीं एक्सट्रीमिटी सर, कवर पढ़ना बहुत पड़ता है। सर लोअर एक्सट्रीमिटी कवर हो तो गया है उसमें। सर 15 लेक्चर रिस्ट जॉइंट का है, 15 लेक्चर में तो रिस्ट जॉइंट आता है। अच्छा सर 4 ही बनता है।
सर लोअर सर पे काफी है ना, मत जाए, उस तरह लूज हो जाएंगे हम। और हम चलें। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। चलें ठीक है, ये 4 लेक्चर्स ही होंगे, ठीक है। सर थैंक इसकी यू सर। वेटेज क्या है? क्या कह रहे हो वेटेज? यस सर। 25। 25% है बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सर मोबाइल ज्यादा ले सर ज्यादा सर फोकस करना सानिया है ऑन द मैनेजमेंट, सानिया ठीक है। प्रेजेंट थी लेकिन ओके सर सानिया प्रेजेंट थी लेकिन ना उसका भी नेट का इशू है तो कह रही है कि मैं आपको बता दूं। हाँ जी, पता चल गया मुझे। ठीक है बच्चों, ओके सर, ठीक है। ओके बच्चों, प्लीज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। फिर